Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So, in today's class, we are going to talk about rights, duties, and equalities. So, I hope you guys are here. So, in today's class, you are going to learn about equality. The question is that what is equality? Do you have equality? Are all men are equal? Men and women are equal? You see in Pakistan or even other rest of the world, you might have come across the concepts of equality. Like women demand equality. Women demand equality. And there are workers, they demand equality. Students demand equality. Some people want liberty. We have already discussed liberty yesterday. But in our today's class, we are going to explore what is equality, what equality do we have, and what not. So let us make today's class a bit interactive. You can ask me questions. Invite your friends to the class. Share this lecture in our Safe 6 WhatsApp group. And right there, political science class is going on. So that those students who have not received the notification will receive it and they may join it without any further delay. So equality, when we talk about equality, what comes to your mind first? As I told you that, let us make this class a bit interactive. So let's make it easy for ourselves. Right? Right here that what is equality according to you? And do you believe that equality exists or not? कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? पहला क्वेश्चन, इक्वालिटी क्या है वो लिखें, जो भी आपकी जहन में आता है. वो भी लिखें कि इक्वालिटी क्या है अकॉर्डिंग टू यू. फिर लिखें डज इक्वालिटी एग्जिस्ट. क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में? ये भी साथ में लिखें. इक्वालिटी, बराबरी, कि जनाब हमें बराबर के हकूक चाहिए, हमें बराबरी चाहिए. तो सवाल ये है, as I told you earlier that first the CSS aspirants must know what equality is, and then they can advance their arguments in paper, can give examples and arguments, impressive, persuasive arguments. असदुल्लाह ने लिखा है
Equality is being same in value, measure, status, rights and duties. ठीक. फरहान दाजेब ने लिखा है जस्टिस राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट. इक्वालिटी. अच्छा, तो अब हम चलते हैं इक्वालिटी की तरफ. जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसको नोट करें एक पेज पर. ऐसा पेज आप लोगों के पास होना चाहिए. सही. उस पर आप लोग जो है लिखें. नहीं तो रजिस्टर भी आप लोग यूज कर सकते हैं ऐसा. ठीक है. उस पर अपने लिए लेक्चर के नोट्स बनाएं इन बुलेट पॉइंट्स. जो पॉइंट्स आप लोगों को बुक्स में फिर मुश्किल लगती है एंड यू फाइंड द कंसेप्ट difficult, so after the lecture those points won't be much difficult for you then, because once you get the concept clarity, it does not matter what books you read, what author you read, and how many books, how many chapters, etc. तो इक्वालिटी की बात जब हम करते हैं तो हमारा मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस के जनाब सब लोग बराबर है. ऐसा नहीं है कि एक शख्स को ज्यादा जो है प्रिविलेज किया जाए. जैसे सोसाइटी में क्लास डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज अपर क्लास एंड लोअर क्लास. अपर क्लास के लिए एक तालीम, लोअर क्लास के लिए दूसरा. इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम. ये नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट इक्वालिटी डिमांड्स, द एब्सेंस ऑफ special privileges. ये तो है. अब सवाल ये है कि क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ 1789 में, तो उन लोगों ने ये डिक्लेयर किया दैट all men are born free and equal. So all men should be treated equally. कि तमाम के तमाम लोग आजाद पैदा हुए हैं, इक्वल पैदा हुए हैं, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए. ये उनका जो था स्लोगन था, that all men are born free and equal and they must be treated equally. लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो हकीकत में ऐसा नहीं होता. Absolute equality does not exist. All men are not equal. तमाम के तमाम लोग बराबर नहीं है. Particularly when we mean natural equality, when we mean biological equality, biologically कोई भी equal नहीं है. Even two brothers are not equal. One will be rich, the other will be. So it is not biological. Come to the biological example. One will be fat, the other will be thinner. One will be taller, the other will be shorter. So two brothers are not equal, two sisters are not equal, men and women are not equal. आदमी और औरतें बराबर नहीं है बायोलॉजिकली, कभी भी नहीं हो सकती.
Natural equality does not exist. Biological equality does not exist. ये जो लोग औरत मार्च पर ये आवाज उठाते हैं कि औरतें कमजोर है, ये कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकते, तो इनके जहनों में बायोलॉजिकल इक्वालिटी होती है, जबकि औरतें कभी भी बायोलॉजिकल इक्वालिटी नहीं चाहते। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें हम, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। एक शख्स ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा कमाएगा, एक शख्स ज्यादा काबिल है तो ज्यादा कमाएगा, ज्यादा इंटेलिजेंट है ज्यादा कमाएगा, ज्यादा काम करता है ज्यादा कमाएगा। दूसरा शख्स घर में बैठा होगा, उसमें कोई क्वालिटीज ही नहीं होगी, कोई कॉम्पिटेंस ही नहीं होगा, तो फिर तो है वो तो नहीं कमा सकेगा। तो इस वजह से इनइक्वालिटी जो है पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी इज नेचुरल, ये बात, इक्वालिटी इज नॉट नेचुरल, ये बड़ी फिलोसॉफिकल बात है कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल। इनइक्वालिटी है बस बाय बर्थ भी है, खुदा ने भी बनाया है लोगों को इसी तरह। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कमजोर है, कोई जो है ताकतवर है, कोई किसी की इम्यूनिटी जबरदस्त है और किसी की इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर है। तो जब हम नेचर की बात करते हैं, इनइक्वालिटी इज नेचुरल, इक्वालिटी इज नॉट नेचुरल। इक्वालिटी जो है कभी भी नेचुरल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ कि पॉलिटिकल साइंस किस इक्वालिटी की बात करता है। नीलम अकबर ने जवाब दिया है कि आई थिंक women शुड ऑप्ट फॉर इक्विटी। नो, इक्विटी नहीं, इक्वालिटी इक्विटी दोनों, लेकिन कौन सी वो बताने जा रहा हूं। देखिए, इक्वालिटी जो आम इंसान मांगता है, जब मैं मैन लफ्ज यूज करता हूं तो मैन से मेरा मुराद इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, सेपियन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो बात यह है कि जब भी मैं मैन लफ्ज यूज करता हूं, आई मीन बोथ मैन एंड वेमेन। ठीक है, चूंकि किताबें मर्दों ने लिखी है तो सब किताबों में मैन लफ्ज यूज हुआ है। पुराने जमाने में जो कहावतें, इडियम्स और प्रोवर्ब्स बनाए गए, ज्यादातर मर्दों पर बनाए गए। लैंग्वेजेस मेल डोमिनेटेड। अगर आप लोगों में लिंग्विस्टिक्स का कोई स्टूडेंट है तो उसे बेहतर पता होगा कि लैंग्वेज जो है दैट इज मेल डोमिनेटेड। गालियां दी जाती हैं तो मां बहन की दी जाती है, मर्दों की गालियां कोई भी नहीं देता। वाई? बिकॉज लैंग्वेज इज मेल डोमिनेटेड। औरत के लिए हजार गंदी गंदी गालियां और अल्फाज मौजूद हैं। जैसे उर्दू की मिसाल ले लूं, तवाइफ, ये औरत के लिए उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है, लेकिन तवाइफ के पास जो शख्स जाता है उसके लिए कोई भी ऐसा गंदा नाम नहीं है उर्दू लैंग्वेज में। इसी तरह औरत के लिए अपने अल्फाज इंग्लिश में नहीं है, वो इंग्लिश भी मेल डोमिनेटेड है। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, पोएट, पोएटिस, तो ये एक्ट्रेस और पोएटिस वगैरह जो है क्या है, औरतों के लिए अल्फाज ही, वोकैबुलरी ही इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन खैर, ये जब आप जेंडर स्टडीज मेरे साथ पढ़ेंगे, वहां पर मैं आप लोगों को ये औरतों के मसाइल और मर्दों के मसाइल ये अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे। अच्छा, इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी से आज का मेरा मकसद दोनों की इक्वालिटी है। तो सवाल यह है कि क्या इंसान इक्वल हो सकता है? तो अगर बायोलॉजिकल इक्वालिटी की बात की जाए तो जवाब है नो, बायोलॉजिकल इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट।
एब्सोल्यूट इक्वालिटी के मुकम्मल हर लिहाज से आप बराबर हो जाएं, दैट इज इम्पॉसिबल एंड दैट इज आइडियल। वो आइडियल है कि एक इंसान दूसरे इंसान के मुकम्मल बराबर हो जाए, एक के पास भी वही ताकत हो जो दूसरे के पास है, एक के पास भी वही पैसा हो जो दूसरे के पास है, एक के पास भी वही तालीम हो जो दूसरे के पास है। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज आइडियल एंड दैट इज इम्पॉसिबल। व्हाट इज देन इक्वालिटी? इक्वालिटी असल में कौन सी इक्वालिटी? जब हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं तो हम कहते हैं द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस फॉर अ स्पेशल क्लास। एक खास क्लास है, लोग हैं, उनके लिए जो इक्वालिटी है या सुपीरियरिटी है या इंफीरियरिटी है, इन कंसेप्ट्स को खत्म होना चाहिए। मिसाल देता हूं, रेसेस लोगों ने बनाए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर की बुनियाद पर, जेंडर के बुनियाद पर, मर्द औरत को, रिलीजन के बुनियाद पर कि फ्ला रिलीजन सुपीरियर है और फ्ला, तो ये नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज समथिंग पॉसिबल, ये पॉसिबल है। बस आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी क्लास से हो, यू आर इक्वल एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। और इसके लिए लोग लड़ते हैं कि अगर ब्लैक हैं, अमेरिका में ले ले, और वहां पर उनको नीच तस्वर किया जाता है, सो दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर दियर इक्वालिटी। गुलामी है तो किसी को गुलाम नहीं होना चाहिए, और गुलाम अपने हकूक के लिए लड़े हैं व्हेन यू स्टडी अमेरिकन हिस्ट्री। इसी तरह औरतें जो है इक्वालिटी चाहती है, वो कहते हैं कि हमें कमजोर ना समझे। They want economic equality. They want legal equality. They want justice equality. कि इंसाफ चाहिए तो फिर औरत को भी वही इंसाफ दो जो मर्द को दे रहे हो। तो जो हम इक्वालिटी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाती है लीगल इक्वालिटी, वो इक्वालिटी जो कानून आपको देती है। आप सब CSS के लिए जा रहे हैं, अब इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, एंड बोथ विल अपीयर इन एग्जाम इक्वली। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए एक खास स्पेशल कोटा है और लड़कियों के लिए एक खास स्पेशल कोटा है, ऐसा नहीं है। अगरचे माइनॉरिटी के लिए है, ये भी जो है पॉलिटिकल साइंस के रूप से नहीं होना चाहिए। ह्यूमनली जो है, नेचुरली जो है, ये डिस्टिंक्शन, ये माइनॉरिटी का कंसेप्ट, ये भी वेस्टर्न में तो खत्म हुआ है, जो सेकुलर कंट्रीज हैं वहां पर खत्म हुआ है। जो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स है, थियोक्रेटिक स्टेट्स है, तो वहां पर थियोक्रेसी या रिलीजन का बहुत ज्यादा असर होता है, तो वहां पर माइनॉरिटी का कंसेप्ट मौजूद है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में। हालांकि रिलीजन के बुनियाद पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप माइनॉरिटी में हैं। इन पॉलिटिकल साइंस की रूह से बता रहा हूं। एनी हाउ, ये कोटा सिस्टम जो है, दिस इज अगेंस्ट द इक्वालिटी, ये भी इक्वालिटी के खिलाफ है और ये भी नहीं होना चाहिए। सिविल इक्वालिटी के तमाम शहरी बराबर है। सोशल इक्वालिटी के तमाम मजाहिब के लोग, सेक्स के लोग, जेंडर जिसको हम कहते हैं, नस्ल के लोग, रेस, ये सब क्या है? बराबर है। ये इक्वालिटी जो है इंसान डिमांड करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर स्टेट जो है बाउंड है, पाबंद है इस बात का कि लोगों को इक्वालिटी देने, अगरचे बहुत जगह पर यह नहीं होती। इकोनॉमिक इक्वालिटी सबको, अब इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सच है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ज्यादा अमीर है तो कोई कम, और ये हमेशा से आ रहा है और होता रहेगा। लेकिन साथ में आप लोगों को यह भी बता दूं कि इतनी इक्वालिटी हो ताकि एक शख्स जो है स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो गुजार सके, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से उसे फ्रस्ट्रेशन ना हो,
स्ट्रेस्ड लाइफ ना हो, कि बस उतना इतना ज्यादा गरीब हो कि बस बेचारे को खाना, कपड़े और शेल्टर, ये 3 चीजें, बुनियादी चीजें जो इंसान की जिंदगी के लिए हैं, वो मुयस्सर ही ना हो। पॉलिटिकल इक्वालिटी के तमाम शहरी वोट दे सकते हैं, तमाम के तमाम शहरी जो है पाकिस्तानी या इंडियन या अमेरिकन है, इसी तरह तमाम के तमाम शहरी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, तमाम के तमाम शहरी जो है एक मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं, उसको भी अच्छे ऑफिसेस जाने का मौका दिया जाना चाहिए, और दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी। आई होप आप लोगों का इक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को 2-3 मिनट देता हूं। इक्वालिटी पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंड दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज। कि राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है। जी, if you have any kind of question regarding equality, I am giving you 2 minutes, and after that I will start a new topic, and that is rights and duties. इंसान को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है और मेरे ड्यूटीज क्या है, और यही चीजें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। उसकी पर्सनालिटी बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट होती है, जबरदस्त होती है, जिसको पता होता है कि मेरे राइट्स क्या है और जिसको पता होता है कि मेरे ड्यूटीज क्या है। को पता है राइट्स का, फिर किसी से नहीं डरते, एंड देन यू कैन स्नेच द राइट्स एज वेल। लोगों के बिल्कुल उससे मजोर भी अपना हक छीन सकते हो कि ये मेरा राइट है, दिस इज माई राइट। ये जो लोग इस्लामाबाद जाकर धरना देते हैं तो क्या कहते हैं, दिस इज माई राइट, कि ये मेरा क्या है, राइट है। फिर वो हुकूमत से भी नहीं डरते, पुलिस से भी नहीं डरते। नीलम अकबर, लाइक हाउ डू आई सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज पर, इक्वालिटी पर, किस टॉपिक पर, पहले ये भी साथ में आइडेंटिफाई करें। शाह सैफ मेंबर कहता है कि डज इक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी? नो, इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। है ना, कैन वी से दैट इक्वालिटी इन फाइनेंस और एजुकेशन इज जेंडर फ्री? Every equality is gender free. Gender has nothing to do with equality. Every equality, not only in education or finance. Every equality. चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, you don't need to mention your sex or gender. क्या जरूरत है? आज औरतें भी वही कुछ कर सकती है जो मर्द करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, औरत भी पॉलिटिशियन बन सकती है, मर्द भी बन सकता है। औरत भी एक टीचर बन सकती है, मर्द भी बन सकता है। सो इक्वालिटी डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ अ पर्सन्स जेंडर। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लीगल इक्वालिटी, जस्टिस, इसी तरह सिविल इक्वालिटी होगी, सोशल इक्वालिटी हो गई, ये सारी चीजें हम डिमांड करते हैं। एजुकेशनल इक्वालिटी, इंसाफ चाहिए तो बस दोनों को इक्वल मिले, सैलरी दोनों को इक्वल सैलरी मिले, ऐसा नहीं कि मर्द को ज्यादा औरत को कम, इज्जत दोनों को बराबर इज्जत मिले। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखो, इक्वालिटी का ताल्लुक बराबरी से है और इक्विटी का ताल्लुक फेयरनेस, इसका ताल्लुक फेयरनेस से है। इक्वालिटी का ताल्लुक फेयरनेस, कि एक आपने जब कुछ करना है तो उसमें फेयर रहे। किस तरह, ये मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूं। 3 भाई है, ठीक है, 2 अमीर है, एक गरीब है, और घर का
जो है तकसीम हो रहा है। तो इक्वालिटी ये है कि हर एक को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए, ये इक्वालिटी है। इक्विटी फिर ये कहती है कि नहीं, ये फेयर नहीं है, ये दो ऑलरेडी अमीर है, एक गरीब है, तो इस एक को जो है दोनों से ज्यादा मिलना चाहिए ताकि ये भी उनकी तरह अमीर बन जाए। ये फिर क्या है, ये इक्विटी है। डू आई नीड टू गिव आर्गुमेंट्स? यस, आर्गुमेंट्स आपने हमेशा देने हैं। आर्गुमेंट्स के बगैर जो है क्वेश्चन हल ही नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल के जरिए बड़ी आसान तरीके से समझ आती हैं। आपने जो भी स्टेटमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने ये कह दिया कि बायोलॉजिकल इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है, आपने पास कर लिया। नेचुरल इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बड़ा स्टेटमेंट आपने पास कर लिया। आप एग्जामिनर को आपने प्रूफ देना है कि क्यों नहीं, आर्गुमेंट तो देना है, एग्जाम्पल देना है, कन्विंसिंग आर्गुमेंट। फिर आप साथ में ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बायोलॉजिकली नो वन इज born equal. Even two brothers are not equal. One will be shorter and the other will be taller. One will have weak immune system, the other will have strong immune system. One will have blue eyes, the other will have black eyes. One will be strong, the other will be weak. So therefore biological equality does not exist. अब ये आपका जो है पूरा एक छोटा पैराग्राफ भी बन गया, स्टेटमेंट भी दे दिया, बायोलॉजिकल इक्वालिटी को प्रूव भी कर लिया विद अदर स्टेटमेंट्स। हम उसको कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो जब ये आप लिखते हो देन यू डू नॉट मिस द मार्क्स। एग्जामिनर खुश होता है, बजाय इसके कि आप बस लिखते रहे और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते रहे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बाज औकात, बाज नहीं, अक्सर हमेशा जब ऐसे चेक करता हूं, प्रेसी चेक करता हूं, पेपर चेक करता हूं, तो स्टूडेंट्स के यही बातें होती है कि बस स्टेटमेंट्स पास करते हैं एंड डू नॉट सब्सटेंशिएट द आंसर with examples, with convincing arguments to prove his or her statement or statements acceptable, logical and convincing. Acha, Mir Faraz, what about quotations we can add in exams? Quotations, relevant quotation, yes, you can add, particularly in political science. किसी का एग्जैक्ट डिफिनीशन वर्ड याद है, नाम भी लिखें, कोटेशन मार्क्स में उसको जो है बन भी करें, लिखें, आप लिख सकते हैं, बट रेलेवेंट। और अगर रेलेवेंट नहीं है तो सिर्फ आपको आंसर ब्यूटिफाई करने के लिए बच्चों की तरह वो कोटेशन यूज नहीं करनी चाहिए। और कोटेशन का नुकसान ये भी है दैट यू लूज योर ओन ओरिजिनलिटी, कि इंसान अपनी ओरिजिनलिटी जो है, फिर ऐसा एग्जामिनर को लगता है कि इसकी जो बातें हैं ये तो किसी और की बातें हैं, इसको तो खुद कुछ भी नहीं पता, एग्जैक्ट हू बहू वही अल्फाज दोहराए जा रहा है। और जब आपने कोटेशन लिख लिया तो रेलेवेंस भी बता दो, प्रूफ भी करो कि ये तुमने क्यों लिखा है। तो मोस्टली मैं आपको कहता हूं कि ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल जो है वो इतना ज्यादा कोटेशंस पर जो है रिक्वायर क्या है, स्टैंड नहीं करती। सो यूज when necessary and when you have the complete background knowledge and when you can relate it with your answer. Otherwise, do not use quotations as you will lose the originality of your answer. Kindly throw some light on the topic law in democracy. ममूना मंजूर, आप इस तरह करें, ये क्वेश्चन के आज के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, तो फिर मैंने एक पोस्ट बनाया है सेफ पॉलिटिकल साइंस क्लास इसी ग्रुप में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछें मुझसे और इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें कि तुम्हारा मकसद क्या है लॉ इन डेमोक्रेसी। ठीक है,
फिर हम इस पर डिटेल बात करेंगे। अभी जो टॉपिक है इक्वालिटी है, राइट्स हैं और लिबर्टीज हैं। सर लॉ क्लासेस विल बी स्टार्ट, एक तो ये कि आप लोग ग्रामर पर बहुत काम करें। लॉ क्लासेस विल स्टार्ट, नॉट विल बी स्टार्टेड। तो ये है कि विल स्टार्ट, ठीक है, इन दिस ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर पढ़ाना हुआ मुझे, जैसे पेपर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो फिर हम इसी ग्रुप में उसको शुरू करेंगे। अदरवाइज देयर इज अ सेपरेट ग्रुप फॉर लॉ क्लासेस। अच्छा, अब आते हैं नए टॉपिक की तरफ, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आप लोगों के ख्याल में राइट क्या है? राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज अ ड्यूटी? व्हाट इज देयर रिलेशन विद ईच अदर? राइट और ड्यूटी का जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो क्या है? राइट और राइट क्यों एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में? हम कहते हैं कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है, एंड दिस इज माई राइट टू हैव इट। अब ये मेरा राइट है कि मैं इसको रख लूं, इस्तेमाल करूं, फेंक दूं, जो भी करूं इसके साथ, दिस इज माई राइट। घर है आप लोगों का, सो दैट इज यूर राइट टू हैव इट, टू लिव इन इट, उसमें रहे, सो दैट इज यूर राइट। तो असल में राइट आते कहां से हैं? इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय राइट? राइट आप लोगों के मुताबिक राइट है क्या चीज? जल्दी लिखें, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू इन डिटेल्स अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज। चलो, जब हम बात करते हैं इंसानों की बात करते हैं तो उसको दो चीजें चाहिए, दो चीजें। एक उसकी पर्सनल नीड्स होती हैं, पर्सनल नीड्स लाइक क्लॉथिंग, लाइक शेल्टर, हाउस, होम, गाड़ी वगैरह सब आ जाते हैं, एंड फूड। ये तो चाहिए, हर इंसान को चाहिए, आपको भी, मुझे भी, सबको तीन चीजें चाहिए। फिर दूसरा एस्पेक्ट भी है ह्यूमन नेचर का, और वो ये है दैट अ ह्यूमन कैन नॉट लिव अलोन, ये अकेले नहीं रह सकता। तो इट नीड्स अ पार्टनर, उसे पार्टनर भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, उसको जो है कंपनी भी चाहिए, एक कंपनी भी चाहिए, एसोसिएशन भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो उसको ये सब चाहिए। अब इंसान की जरूरियात होती है, डिजायर होती है, ठीक है। अब वो कुछ करना चाहता है और बाकी लोग उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं। सो ऑल दोज डिजायर्स आर एक्शंस, आर एक्ट्स दैट यू डू बिकॉज यू वांट देम एंड they are recognized by the members of the society, become your rights। फिर सोसाइटी जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है। मिसाल के तौर पर आपने घर ले लिया, या आपका डिजायर था, ख्वाहिश थी, या मजबूरी थी, नीड था, और सोसाइटी ने, इस मुल्क ने मान लिया कि हाँ ये आपका घर है, रहे इसमें। तो फिर ये रखना, इसमें रहना, देन इट बिकम्स यूर राइट। फिर ये आपका जो है राइट बन जाता है।
So right is socially recognized claim. सही। इसके लिए रिकॉग्निशन बड़ा लाजमी है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके जहन में, और क्वेश्चन ये होगा that why society should recognize my desires, my needs, कि सोसाइटी को क्या मिलेगा मेरे राइट्स को राइट्स मानने में, या मेरे ख्वाहिशात को पूरा करने में, रिकॉग्नाइज करने में, उसको क्या मिलेगा? और क्या हर एक अमल सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है? तो इसका जवाब है नो। सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ उन क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करती है जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो। कॉमन गुड क्या है? कॉमन गुड, ये कंसेप्ट जो है उसमें हो। सोसाइटी विल रिकॉग्नाइज ऑल दोज क्लेम्स, डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ यूअर्स which are good for the common people, for all the society. And जो concept है वेलफेयर का, जिसमें सोसाइटी की फलाह बेहबूद हो, वही चीजें सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। मिसाल के तौर पर शादी करना, आप जाते हैं किसी लड़की से शादी करते हैं, लड़की हैं तो लड़के से, तो सोसाइटी इसको मानती है कि हाँ करें, जाएं शादी करें। क्यों? क्योंकि इसमें सोसाइटी की बिका है, फायदा सोसाइटी का है। फिर सब ये चैनल यूज करेंगे। घर रखना, राइट टू लिव, रहने का हक, तो अगर कोई आपसे रहने का हक छीनता है तो फिर किसी से भी ये हक छीना जा सकता है। तो इस वजह से सोसाइटी इसको मान लेती है। तो कॉमन गुड का कंसेप्ट भी आ जाता है। मोरली जो है इंसान उसको मान लेता है कि हाँ मोरली भी ये ठीक है। लोग जो है कॉन्शियस, आपका जो अपना कॉन्शियस जहन है वो आपको बताता है कि हाँ ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरा एसेंशियल फीचर भी आ गया। और तीसरा ये है कि फिर गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो भी रिकॉग्नाइज करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट रिकॉग्नाइज, एजुकेशन ले लें तो स्टेट रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये आपका हक है। जैसे पाकिस्तान ने एजुकेशन 16 इयर्स स्टूडेंट या जो क्या है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी तक जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपको ना मिले तो आप अदालत जा सकते हैं और हुकूमत से उसका मुतालबा कर सकते हैं। बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स। और स्टेट पर मजबूर है कि वो आपको एजुकेशन दे दे, फ्री एजुकेशन। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? सबको राइट्स मिले। फायदा ये है कि एक अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा जिसमें कॉमन गुड होगा। सबकी जो बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, सबको मिलेंगे। प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। अगर राइट्स रिकॉग्नाइज ना हो, सो अकॉर्डिंग टू लास्की देयर विल बी द लॉ ऑफ जंगल, तो फिर तो जंगल का कानून होगा। लोग छीनेंगे इसको अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। माइट इज राइट होगा। और फिर डार्विनियन थ्योरी जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सिर्फ वो शख्स इस दुनिया में रहेगा जो फिट होगा। फिट नहीं होगा तो फिर दूसरा जो है उसको खत्म कर देगा।
तो ये सब जो है राइट के फायदे हैं कि एक डिसिप्लिन सोसाइटी वजूद में आती है। अच्छा, राइट्स फिर क्या है, कौन से राइट्स? एक हमारे पास कंसेप्ट है नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट। नेचुरल राइट्स है लोगों के कि बस एब्सोल्यूट राइट्स हैं, बस आप कुछ भी करने के लिए पैदा हुए हैं और बस करते रहें जो भी करना है। तो ये हर काम के लिए आप आज़ाद नहीं हैं। तो नेचुरल राइट्स और नेचुरल लिबर्टी जो हमने कल पढ़ी भी है, उसको एज अ सिनोनिम जो है लिया जाता है कि दोनों एक जैसे हैं। अदरवाइज नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट, आप हर काम नहीं कर सकते। राइट्स आपके हैं, सिविल राइट्स है, ठीक है। मोरल राइट्स है। मोरल राइट्स मतलब यह है कि कोई शख्स, उसका बाप या माँ बूढ़ा हो जाए, बूढ़ी हो जाए, उसको घर से नहीं निकालेगा। या एक शख्स है शादी की तो वो बीवी का ख्याल रखेगा। शी हैज राइट्स ओवर हर हस्बैंड एंड हस्बैंड हैज राइट ओवर हिज वाइफ। तो ये जो है मोरल राइट्स में आ जाते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिए जाते हैं। लीगल राइट्स, उसमें सिविल राइट्स भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी आ जाते हैं, लोगों के इकोनॉमिक राइट्स भी हैं। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। तो ये सब राइट्स में आ जाते हैं। अब ड्यूटी की बात करें जब हम, तो ड्यूटी जो है, जो आपके राइट्स हैं लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये उसकी ऑब्लिगेशन है, तो ये ड्यूटी उनकी है कि वो आपके राइट्स को माने। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अदर्स। तो ड्यूटी असल में उन ऑब्लिगेशंस को कहते हैं, उन मजबूरियों को कहते हैं ड्यूटी, जिसके जरिए एक शख्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान लिया जाता है। योर राइट इज द ड्यूटी फॉर अदर्स एंड अदर्स राइट्स आर द ड्यूटीज फॉर यू। दूसरों के हकूक फिर तुम्हारे लिए। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं, ठीक है, कि आपका हक है कि आप जॉब की प्रिपरेशन करें और अपेयर हो जाएं। दिस इज योर राइट। लोगों की ड्यूटी क्या है कि वो इसको एक्सेप्ट करें, आपको मौका दें एग्जाम में बैठाने का, पेपर चेक करें और आपको रिजल्ट दे रहे। ये लोगों की ड्यूटीज है और तुम्हारे राइट है। तुम्हारे फिर क्या है? तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुमने फिर देखना है कि तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे लोगों ने आपके एक्सेप्ट किए तो तुमने औरों के एक्सेप्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस एग्जामिनेशन हॉल में एक बंदा बैठा होगा, नहीं। फिर आपने लोगों के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करना है, एक्सेप्ट करना है। अब स्टेट जो है, स्टेट आपको राइट्स देती है। स्टेट आपको राइट्स देती है, आपको कहते हैं कि एजुकेशन आपका हक है, हेल्थ जो है फैसिलिटीज आपका हक है, अच्छे रोड्स वगैरह, ठीक है। फिर स्टेट के लिए आपने ड्यूटीज देनी है। स्टेट को आपने क्या देनी है? ड्यूटीज देनी है। जैसे टैक्स अदा करना, ये एक अच्छे सिटीजन की जो है, और जो तालीम आपने हासिल किया, तालीम तो आपका हक है, लेकिन इसके बारे में एक और कंसेप्ट भी है कि राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। ये एक दूसरे पर कोरिलेटिव है। आपने तालीम हासिल कर लिया, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू सर्व अदर्स। आप इसको अच्छे काम में ले आए, CSS करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। आपने इतना बड़ा तालीम हासिल किया, जाएं 12 पेपर्स हैं, दे रहे और उसमें टॉप करें और फिर इस मुल्क की खिदमत करें। एंड दिस इज योर ड्यूटी। देन स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर सर्व करें,
अपने अपने फील्ड में फिर ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि सर्व करें। तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, दे हैव रिलेशन विद ईच अदर। ठीक, अच्छा, so now if you have any kind of question you can ask regarding papers, right, duty and equality। आज 3 टॉपिक पढ़ा दिए, ये चैप्टर्स आपकी किताब में मौजूद भी हैं डिटेल के साथ, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने रोज़ाना 1 या 2 पोस्ट करता हूं और सिर्फ उसमें से मुझे 1 या 2 स्टूडेंट के जो है कमेंट्स मिलते हैं, बाकी उसको रीड करते हैं और इग्नोर करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये जो तरीक़ेकार है ये आप लोगों ने चेंज करना है। हर पोस्ट पर पार्टिसिपेट करें, ख़ास तौर पर जो एकेडमिक पोस्ट है जहां पर मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूं वहां पर पार्टिसिपेट करें। मुझे पता लगेगा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं, और क्या सही सीख रहे हैं और क्या गलत। तो उसके मुताबिक टीचिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगी, क्लास में भी इंप्रूवमेंट आएगी, एंड यू विल बी गेटिंग द इवैल्यूएशन ऑन डेली बेसिस। सिर्फ वीकली एग्जाम के लिए वेट ना करें। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एवरी पोस्ट ऑफ माइन रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये सब जो है बड़े अहम है। इसके लिए मैंने असिस्टेंट भी लिया, वो आप लोगों को मेंशन करेगा, आप उसके साथ भी कोऑपरेट करें। 1 पैराग्राफ लिखे, 2 लिखे, पूरा आंसर लिखे, जितना हो सकता है, बट पार्टिसिपेट। रीडिंग डेली करें, नोट्स डेली बनाएं। डू नॉट वेट व्हेन एग्जाम इज नियर, कि बस एग्जाम आ जाए और मैंने उस वक्त तक जो है सिर्फ क्लासेस सुननी है और पार्टिसिपेट नहीं करना। नो, रीड एंड राइट। Reading and writing are the 2 things that are necessary for excellence, for success in CSS. अच्छा, सेफ पॉलिटिकल साइंस ग्रुप में मैंने, इसी ग्रुप में जिसमें क्लास ले रहा हूं, इसी में मैंने एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट को जाकर देखे, वहां पर मैंने क्लियरली लिखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास में आंसर नहीं होते, या आप लोगों को जनरल रीडिंग में मसला आता है, बुक रीडिंग में मसला आता है, तो वहां पर जाएं, क्वेश्चन करें, कमेंट करें, और मैं वहां पर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और वो बस एक थ्रेड होगा, बस उसी में हम ये 1 महीना जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। सिर्फ 1 पोस्ट है, इसी ग्रुप में है। ठीक है, क्लास की बात आ जाए या कोई और पोस्ट हो, तो जो मामूना मंजूर है वो आप लोगों को मेंशन करेंगी, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, साथ में खुद को इंट्रोड्यूस भी करें दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ सैफ and also the member of SAF Political Science Group. Kindly accept my request and mention me where there is an important announcement of political science class. अच्छा, माहा अरीन कहती हैं कि कैसे नोट्स बनाएं। नोट्स, एक तो लेक्चर के दौरान जो छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताता हूं, जैसे इक्वालिटी, एक डिफिनीशन मेरे मुंह से सुन लिया, वो लिखें। ठीक है, ये मेरे ख्याल में 1 पेज से ज़्यादा कभी भी नहीं होता क्लास के दौरान। ठीक है, जो बात भी मेरे मुंह से निकले और इम्पोर्टेंट लगे लिख ले। ठीक है, कमेंट करें, बाद में लिखें।
एक बुक से नोट्स बनाना होता है। वहां पर जाएं, बुक्स ओपन करें, एक पूरा पैराग्राफ रीड करें, जो जो बातें आपको समझ आती हैं वो लिखे अपने लिए इन बुलेट फॉर्म में लिखे। पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है कि उससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आप कोई मशीन नहीं हो, फोटोस्टेट मशीन, कि बस इधर पेज रख लिया और उधर हू बहू वही चीज़ निकाल ली। तो अपने लिए जब नोट्स बनाते हो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ बनाएं। हाँ, सेंटेंसेस लिखें छोटे छोटे, सिर्फ हेडिंग्स ना लिखें। हेडिंग से समझ ही नहीं आती एक साल बाद कि मैंने क्या लिखा है। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए डिफिनीशन है 1 लाइन 2 लाइन का, वो पूरा लिखें। नाम लिखना है लिखें, डेट्स, अहम डेट्स हैं वो भी लिखें। जी, हमारे पास देखिए, मेरा जो टारगेट वो क्या है, इस महीने हमने पेपर 1 खत्म करना है और पेपर 1 के लिए हमारे पास 3 किताबें हैं। अभी हम सिर्फ पहली किताब में पढ़ रहे हैं और उसमें से मैंने 3 क्लासेस में आप लोगों को 9 चैप्टर पढ़ाए हैं, 9 चैप्टर्स। ये ड्यूटी और राइट का एक चैप्टर है। कल हमने लॉ काइंड्स टाइप्स पर बात की थी, लिबर्टी इक्वालिटी पर बात की थी, वो अलग चैप्टर है। 2-3 चैप्टर स्टेट्स पर है, उसके थीरीज है। ये आप लोगों ने कवर करने हैं। उसके लिए रीड करें और अगर 10 पेज का एक चैप्टर है तो उसके नोट्स बनाते वक्त आप 1/3 फार्मूला जहन में रखें। बस 3 या 4 पेज के नोट्स बनाएं हर चैप्टर के, इससे ज्यादा ना बनाएं। पूरा बुक या पूरा चैप्टर लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। इतना शॉर्ट भी ना हो कि आपको फिर बाद में समझ ही नहीं आए कि मैंने क्या लिखा है, और इतना लॉन्ग भी ना हो कि इंसान बोर हो जाए कि मैं अपने नोट्स पढ़ूं या किताब पढ़ूं। तो 1/3 फार्मूला फिर इनफ है, उससे इंसान को समझ आती है। या जो है 5 पेजेस हैं तो उसको 1 पेज बना दें या 2 पेज बना दें, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन नोट्स मेकिंग। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो सिर्फ ये नहीं कि क्लास के दौरान, क्लास के बगैर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एक खास पोस्ट बनाया है, वहां पर आप लोग कमेंट करेंगे, किसी और जगह पर नहीं, इसी ग्रुप में मौजूद है। आप लोगों को पता है, ठीक है, नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, ठीक है। और ये ड्यूटी आप लोग मेरे साथ जो है, शुड थीरीज बी क्रैम, नहीं, क्रैमिंग नहीं चाहिए। थीरीज क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ये जब मैं थीरीज पढ़ाऊंगा, लाइक थॉमस हॉब्स की थीरीज है, जॉन लॉक की है, रूसो, प्लेटो, अरिस्टोटल के हैं, तो उनको जो है मैं कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ टीच करूंगा और उसके जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों ने याद करने हैं। क्रैमिंग का अगर तुम्हारा मतलब हु बहू क्रैमिंग है कि बस वही चीज, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अपने ही अल्फाज में लिखे, लेकिन जो क्वालिटी है या जो कंसेप्ट है वो मिस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं लिखना, ग्रामर वगैरह का ख्याल ये भी रखना है। अच्छा, इज इट इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द बुक्स और जस्ट रीड आउट सिलेबस टॉपिक्स? जरूरी तो है, रीड करे, पूरा किताब पढ़े, लेकिन बताता हूं, एक साल में इतने ज्यादा बुक्स पढ़ना दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं टीचर्स के साथ चलें। जो मैंने आज पढ़ाया है 2 चैप्टर्स, उन 2 चैप्टर्स को मुकम्मल पढ़ें। जिन आइडियाज़ की समझ नहीं आती क्वेश्चन करें, जिसकी समझ आ गई नोट्स बना लें, और इसी तरह जो है अपना काम जारी रखें। हर एक बुक भी नहीं पढ़ना, 3 बुक है। ये जो पहला बुक है इसके 27 चैप्टर तकरीबन ये हैं, ये हमने सारे पढ़ने हैं। फिर जब मैं पॉलिटिकल फिलोसोफर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें से जो सिलेबस के मुताबिक होंगे वो पढ़ाऊंगा। फिर जो मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो उसमें से ही चंद नाम है 5। किताब में 20-25 पॉलिटिकल फिलोसोफर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो डिमांड करते हैं सिलेबस में बस वही है। तो इस लिहाज से जो बाकी 2 बुक्स हैं लगते बड़े हैं, लेकिन उसमें से 5-5 और 6-6 जो है
political philosophers हमने पढ़ने हैं, and we will easily be able to cover them in the last 10 days of this month. तो कोई question है पूछ ले. It's enough. Have a nice time. Enjoy yourselves. Thank you.